Assalamualaikum students. Today we are going to start unit number 3 and its title is Dynamics. Dynamics का चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों ने इसका यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स पढ़ा था और काइनेमेटिक्स में हमने मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था। मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कॉज ऑफ मोशन। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये कितनी उसकी एक्सेलरेशन है, इसके बारे में पढ़ा था। अब यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। Start with the definition of dynamics. Dynamics is a branch of mechanics and mechanics is a branch of physics. Mechanics has two sub-branches, kinematics and dynamics. We have studied kinematics in chapter number 2 and chapter number 3 we will study about dynamics. Dynamics is a study of motion of an object and cause of its motion. Cause means हम मोशन की वजह मालूम करने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में हमने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स मूव कैसे करते हैं और डायनामिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्यों मूव करते हैं, उनके मूव करने की वजह क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी ताकत है जो उनको मूव करवाती है। When we talk about cause of motion, it means we are talking about some force. The first thing that comes in our mind when we say a word movement, that word is force. We have already learned before in previous classes about force, that force is a push or pull. This is the first definition which we have learned about force. Now the question arises, that are these two words, push and pull, enough to describe the whole concept of force? Then the answer is no. Force is much more than just push and pull. Then what is force? We can observe that force can move an object at rest, force can stop a moving object, force can change the shape of an object, force can change the speed of an object, and force can also change the direction of a moving object. यानी कि फोर्स ये सारे काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकती है, वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को मूव करवाती है, वो किसी ऑब्जेक्ट की शेप और स्पीड को चेंज कर सकती है, और वो किसी ऑब्जेक्ट की मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। तो इसलिए सिर्फ पुश और पुल जो वर्ड्स हैं वो फोर्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। So we need a more detailed and enhanced definition of force. On this page you can see different examples of what force can do. In example number 1 we can see that a man is pushing a cart, so a force is making an object move. In example number 2, a footballer is trying to stop the ball. In example number 3, someone is squeezing the lemon and you can see that lemon is changing its shape. In example number 4, a child is trying to increase his speed, and example number 5, when a player hits the ball, he is changing the direction. In all these examples, the force is doing all the work. Now we have a comprehensive definition of force. A force moves. एक फोर्स जो है वो मूव करवाती है और टेंड्स टू मूव या कोशिश करती है मूव करने की। स्टॉप्स किसी चीज़ को स्टॉप करती है और टेंड्स टू स्टॉप या स्टॉप करने की कोशिश करती है द मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की मूवमेंट को। फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी. In your book, the example of apple is given. When we cut the apple, we are changing the shape and size of a body, and the force is applied by our knife. Before moving towards our next topic of inertia, it is important to have a look at the history. Galileo was a scientist in 1500 and he observed that light objects are easy to move and easy to stop as compared to the heavier ones.
Heavier objects are always difficult to move, and if they are moving, it is difficult to stop heavier objects as compared to lighter objects. These observations of Galileo laid the foundation for Newton's work. न्यूटन ने फर्दर इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर काम किया और मज़ीद मोशन के लॉज जो हैं वो डिफ़ाइन किए। इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ डेली लाइफ सिचुएशंस को देखना, उनको ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। This is a simple experiment to demonstrate inertia. As you can see in the picture, there is a glass filled of water and we have placed a cardboard over the glass and there is a coin over the cardboard. अब हमने क्या करना है कि हम जब कार्डबोर्ड को पीछे खींचेंगे तो असूलन कॉइन क्योंकि कार्डबोर्ड के ऊपर पड़ा है उसको भी कार्डबोर्ड के साथ ही रहना चाहिए। बट हम क्या देखते हैं कि कार्डबोर्ड तो हम मूव कर लेते हैं अवे, लेकिन कॉइन जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहता है और वो फाइनली ग्लास के अंदर गिर जाता है। सो द क्वेश्चन इज़ दैट वाई कॉइन इज़ नॉट मूविंग विद द कार्डबोर्ड एंड वाई कॉइन इज़ फॉलिंग इनटू द ग्लास। Here is another example. As you can see in the picture कि एक pile of books है and someone is taking out one book और जो बुक वो निकालने की कोशिश कर रहा है वो कुछ बुक्स के नीचे पड़ी है। ये हमारी डेली लाइफ की भी ऑब्जर्वेशन भी है कि अगर कुछ बुक्स पड़ी हों और हम थोड़ा नीचे से किसी एक बुक को केयरफुली स्लाइड करें तो बाकी बुक्स अनडिस्टर्ब्ड ही रहती हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि इसकी क्या वजह है कि बाकी बुक्स अपनी पोजीशन जो हम जिस बुक को निकाल रहे हैं उसके साथ चेंज नहीं करती, हालांकि वो उस बुक के ऊपर ही पड़ी हैं। इस पिक्चर में वी कैन सी अनदर डेली लाइफ सिचुएशन कि एक बस है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे बैठे हैं और जब ये बस सडनली स्टॉप करती है तो वाई डू द पैसेंजर्स जर्क फॉरवर्ड, उन्हें क्यों झटका लगता है और वो आगे की तरफ क्यों गिरते हैं? क्यों अगर स्टॉप कर गई है तो क्यों वो अपनी पोजीशन रिटेन नहीं करते और उसके साथ ही स्टॉप कर देना चाहिए उनकी पूरी बॉडी को, लेकिन उनकी अपर बॉडी जो है वो आगे की तरफ फॉल करती है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस जर्किंग फॉरवर्ड? नाउ हेयर इज़ द कंक्लूजन ऑफ अ डिस्कशन। वो सारी सिचुएशंस जो हमने पीछे डिस्कस की हैं और जो क्वेश्चंस हमारे माइंड्स में अराइज हुए उन सब के आंसर्स इनर्शिया की टर्म में मौजूद हैं। न्यूटन आंसर्ड दीज क्वेश्चंस बाय डिफाइनिंग अ न्यू टर्म कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया है क्या चीज़? इनर्शिया इज़ द टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड। जनरल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है जिसके ज़रिए वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहता। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करते रहना चाहती है और अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो फ़ौरन मूव नहीं करना चाहती। फिज़िक्स में इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it resists to the change in its existing state of rest or uniform motion in a straight line. फिज़िक्स में इनर्शिया मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है। उसकी प्रेजेंट स्टेट चाहे रेस्ट है या मोशन की है, दैट मैटर विल रेजिस्ट द चेंज इन दैट स्टेट। और इनर्शिया डायरेक्टली रिलेटेड है मैस ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो रेजिस्ट करेगी चेंज को। ग्रेटर मैस मीन्स मोर रेजिस्टेंस, और जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा। लेस मैस मीन्स लेस रेजिस्टेंस, और जितना किसी चीज़ का किसी ऑब्जेक्ट का मैस कम है उतना ही उसका इनर्शिया उसमें कम प्रोड्यूस होगा। After defining inertia, we have answers to our previous questions. Now we know that why coin fell in the cup. The coin fell in the cup because it tried to maintain its present state of rest and resisted the change. इसी वजह से कॉइन जो है वो इनर्शिया की वजह से कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं किया और ग्लास के अंदर गिर गया। एंड सेम थिंग हैपेंड विद द पाइल ऑफ बुक्स। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन। प्लीज़ रीड द बुक and do memorize the concept and definitions. Read page number 57 and 58 of your book and learn these pages for short questions and objectives as well.